So good evening, students. How are you all? I hope you all are doing well, right? So today we are starting with, right now I have started speaking, so you might be able to hear my voice now, okay? Because I have kept myself on hold so that other voice may not disturb you all. So once again, good evening, all of you all. Now today we are starting with a theorem, a very simple theorem. But in this theorem, we are not proving anything, but just we need to know the statement. Okay. Now what does the statement say? The statement says that the chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. So here, what does the statement say? The chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. So what do we require? A circle. So let us have a circle first of all. Now we have a circle with center C. Okay, in this circle with center C, we require chords. So congruent arcs of a circle, that means, let us say this is one arc P by Q, and let us say the other arc is arc AXB. So these are the two arcs. No, I don't look nervous. My voice is low today, okay? Just a little bit because of this cold, that's it, okay? So we have arc P by Q and we have arc AXB. These are the two arcs and these two arcs are congruent. So arc P by Q and arc AXB are congruent arcs. Okay, so this is the information which we have. So the two arcs are congruent. Now what does the statement say? The chords corresponding to congruent arcs. Now chords corresponding मतलब P and Q को जोड़ दिया तो we get chord PQ, and A and B को जोड़ दिया तो we have chord AB. So chord AB and chord PQ are the corresponding chords. So these are the two chords which are correspondingly with the arcs. So the statement says that chords corresponding to congruent arcs are congruent. That means since the arcs are congruent, okay, since the arcs are congruent, chords are congruent. So chord AB and chord PQ are corresponding chords of arc AXB and arc PYQ respectively. So we can say chord AB will be congruent to chord PQ. Got it? So now students, a little my voice will be low, but that is okay. Okay, the lecture should go on. I think you all are able to hear it. Okay, so chord AB and chord PQ are congruent chords. Perfect. This way we have proved that if the two arcs are congruent, their corresponding chords are congruent. Clear? Fine. Thank you so much, students. So here it's very clear to all of you all that since the arcs are congruent, their corresponding chords are congruent. मतलब अगर यही theorem का statement, if we have to write it as a reason, what will you write? कि congruent क्या था? Arcs congruent था. इसलिए congruent क्या हुआ? Chords. तो we'll say corresponding chords of congruent arcs, because arcs congruent थे, इसके वजह से उसके corresponding chords congruent है. तो corresponding chords of congruent arcs. So इस statement का जो reason करके लिखोगे तो how will you write it? Corresponding chords of congruent arcs. Is it clear? So now it's very clear, students. ये theorem आपको prove नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही prove करना है कि ये statement जब भी आएगा तो आपको सिर्फ बोलना है corresponding chords of congruent. मतलब याद रखना, ये theorem करके कुछ prove नहीं करना है. This is a theorem which we have to apply while solving the sums. मतलब कैसा कि कभी भी बोलोगे तो अगर समझो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दिया होगा, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दिया होगा तो हम बोल सकते हैं कि corresponding chords are congruent. Got it? So just remember this statement.
द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अच्छा, यश आपको ये प्रूव नहीं करना है, ओके, बिकॉज आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है इसलिए कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको लिखना क्या है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ओके। अच्छा, अगर आप पूछोगे आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ओके ओके, आई एम सो सॉरी, राइट राइट राइट, ओके, मैंने लास्ट मोमेंट में देखा नहीं, राइट, थैंक्स फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, जस्ट अ मोमेंट, राइट। दिस इज द आउटपुट स्टूडेंट्स। सो henceforth रिमेंबर, आपको ये स्टेटमेंट किधर प्रूव नहीं करना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। और अप्लाई करते वक्त कैसे याद रखना है, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग है लेकिन, गॉट इट, फाइन। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्टेटमेंट से, ये भी स्टेटमेंट वैसा ही, इन अ सर्कल इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सर्कल, तो लेट अस हैव अ सर्कल, in a circle with center, two chords are congruent. So let us draw two chords first of all. So one is chord PQ, other is chord AB. Okay. Then ये congruent है, मतलब हमें पता है कि दोनों chords congruent है. So chord PQ is congruent to chord AB. Now what does the statement say? मतलब proof क्या करना है? Then they are corresponding minor arcs. अभी देखो students, chord PQ is making two arcs of a circle, one minor, other major. Listen carefully. Chord PQ is making two arcs of a circle, minor arc PQ and major arc PQ. बराबर है? But right now we are talking only about minor arcs. So tell me students, chord PQ का minor arc will be left hand side का arc PQ, minor arc PQ. Chord PQ के लिए minor arc होगा arc PQ, left hand side वाला. And chord AB के लिए minor arc होगा आर्क AB जो राइट हैंड साइड में है, समझा? कॉर्ड PQ का करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगा आर्क PQ, कॉर्ड AB का करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगा आर्क AB. So since the chords are congruent, their minor arcs are also congruent. Okay, then the corresponding minor arcs and major arcs are congruent. तो हम फिलहाल सिर्फ माइनर का आर्क्स का बात कर रहे हैं. So minor arc PQ and minor arc AB would be congruent because chords are congruent. So हमने क्या कर दिया, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक पॉइंट ले लिया x, एंड यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया z. तो we can say arc PXQ is congruent to arc A. Yes, come on, tell me. AZB, बराबर. So these are the minor arcs. So definitely they will be congruent. Arc PXQ congruent to arc AZB. बराबर. जरूरी नहीं कि chords congruent है तो सिर्फ minor arcs congruent है. Chords congruent है तो उनका major arc को भी congruent बोला जा सकता है. So now tell me, अगर हम major arc का बात करते हैं तो tell me students, look at chord PQ. Chord PQ के लिए major arc क्या होगा? आर्क राइट हैंड साइड में देखो, आर्क PZQ, आर्क PZQ, समझा? कॉर्ड PQ के लिए मेजर आर्क होगा आर्क PZQ एंड कॉर्ड AB के लिए मेजर आर्क होगा आर्क AXB. कॉर्ड AB के लिए मेजर आर्क होगा आर्क AXB, बराबर. सो ये होगा आर्क AXB मेजर आर्क फॉर कॉर्ड AB, एंड ये आर्क PZQ होगा मेजर आर्क फॉर कॉर्ड PQ. So arc PZQ and arc AXB are corresponding major arcs, and since the chords are congruent, the major arcs are also congruent. Got it? Clear? So students, what have you understood from this? We have understood that if chords are congruent, then their corresponding minor arcs and corresponding major arcs are congruent. The minor arc को congruent शॉर्ट में आपको
एज अ रीजन करके लिखना है तो रीजन में क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, बिकॉज इधर क्या कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। क्लियर, डन, यस परफेक्ट, कॉन्वर्स ऑफ लास्ट थ्योरम हितेश, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि इट इज कॉन्वर्स और समथिंग लाइक दैट, सो जस्ट वी हैव टू अप्लाई दिस थ्योरम, ये प्रूव नहीं करना है किधर भी, जस्ट वी हैव टू अप्लाई इट, ओके। इसका स्पेशल प्रूविंग आई विल सेंड इट टू यू, मैं व्हाट्सएप के जरिए इसका स्पेशल प्रूविंग आपको भेज देता हूँ, ओके, हैंड रिटन नोट्स बना देता हूँ ताकि आपको डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ओके डन, फाइन। Now look at this sum, a very simple but very important sum. Now listen carefully. In this figure we have a circle with center C. So this is the circle with center C. Now G, D, E, F are concyclic points. Now what do you mean by concyclic points? Yeah, I'll mention, don't worry Yash, I will mention जो delete किया है वो नहीं सिखाने वाला हूँ, I will mention क्या क्या delete किया है, not to worry, okay? So now listen, I will take a special lecture on that for you all. पूरे ज्योमेट्री में क्या क्या डिलीट किया है उसका एक स्पेशल लेक्चर ले लूंगा आने वाले 1-2 लेक्चर में ही, नॉट टू वरी, ओके फाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जो सर्कल पर हो, सेम सर्कल पर, तो D, E, F and G they lie on the same circle, so the points which lie on the same circle they are called concyclic points, okay। आगे क्या इंफॉर्मेशन देखो, एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री, ओके, सो ये एंगल ECF। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ECF इज अ सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल है ये? सेंट्रल एंगल, याद रखना, और मैं पूछूं ना तो मनी मन बोलना भी, या जोर से भी बोल सकते हो बिकॉज अलग अलग बैठे हैं घर पर। एंगल ECF कौन सा एंगल है, बोलो। यस वेरी गुड, सेंट्रल एंगल है। कौन सा एंगल है? सेंट्रल एंगल है। क्यों सेंट्रल एंगल है? बिकॉज वर्टेक्स C is the center of the circle. Vertex C is the center of the circle and the two arms of the angle are radii. The vertex is the center and the two arms are the radii. ऐसे एंगल को बोलते हैं सेंट्रल एंगल, याद रखना। Now क्यों ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज सर्कल चैप्टर में अलग अलग टाइप के एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स को पढ़ा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नाउ सेंट्रल एंगल का मेजर और माइनर आर्क का मेजर हमेशा इक्वल होता है, याद रखना। मतलब ये सेंट्रल एंगल है तो इसका करेस्पॉन्डिंग माइनर है आर्क EF, ये आर्क EF जो है ये उसका करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है, तो सेंट्रल एंगल का जो भी मेजर होगा वो मेजर इस माइनर आर्क को इक्वल होगा, ये याद रखना। सेंट्रल एंगल का मेजर उसके करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क को इक्वल होता है, ओके। सो आगे क्या दिया है, आर्क DGF का वैल्यू दिया है 200, ओके। अब फाइंड क्या करना है, मेजर आर्क DE, सो लेट अस स्टार्ट, ओके, एंड देन मेजर आर्क DEF भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो EF इजीली मिल सकता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, बराबर है कि नहीं, बिकॉज आर्क EF कौन सा आर्क है, आर्क EF इज माइनर आर्क। माइनर आर्क का मेजर किसको इक्वल होता है, माइनर आर्क का मेजर सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है, उसके करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को, दूसरा कोई भी सेंट्रल एंगल नहीं, माइनर आर्क उसके करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है। तो करेस्पॉन्डिंग मतलब कैसे पहचानते, देखो E एंड पॉइंट है, F एंड पॉइंट है, तो एंगल ECF इज द करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मैं जो बोला था ये स्टेटमेंट सामने आ गया है, वी नो द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज मेजर ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, सो ये करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है, सो वी कैन से मेजर आर्क EF इज इक्वल टू मेजर एंगल ECF, और इसका रीजन होगा डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, बिकॉज जो मैंने बोला ना सेंट्रल एंगल किसको इक्वल होता है, माइनर आर्क को, तो ये माइनर आर्क का डेफिनेशन है कि माइनर आर्क का मेजर सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है। सो हमने इसको मैथ्स के फॉर्म में लिखा कि मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, राइट, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, श्योर, फाइन। नाउ हाउ मच इज एंगल ECF गिवन, angle ECF is given 70 degree, so we can say therefore measure arc EF is equal to 70 degree,
ओके, ये कहाँ से मिला? गिवन से मिला, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? ये हमको चाहिए मेजर आर्क ईएफ। नो, फाइनल आंसर तो नहीं है, बट डीई फाइंड करना है, उसके लिए चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स देखो, अभी ये पूरा आर्क है ना डीजीएफ, हमें पता है। अभी अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी सर्कल टोटल कितने आर्क्स का बना है? आप ध्यान से देखो, बताओ सर्कल जो है, पूरा सर्कल, वो कितने आर्क्स का बना है? बताओ, कम ऑन फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। यस, सुपर। गणेश आपने रॉन्ग आंसर दिया। निशांत आपने सर्कल का मेजर बता रहा है, सर्कल का मेजर नहीं पूछा निशांत, मैंने पूछा सर्कल कितने आर्क्स का बना है। क्रिश रॉन्ग आंसर, श्रेया रॉन्ग आंसर। देखो कुछ कुछ बच्चे आंसर रॉन्ग दे रहे हैं, अभी पता नहीं क्यों। अब जो आंसर 4 दे रहे हैं उनको मैं रॉन्ग नहीं बोल सकता, बिकॉज वो भी अपने हिसाब से बराबर ही है। डोंट वरी, स्टॉप गिविंग द आंसर्स नाउ स्टूडेंट्स। आई हैव अंडरस्टूड आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके ओके, देखो सबसे पहला आर्क मैं गिनवाता हूँ आपके साथ। आर्क डीई, ये एक आर्क हो गया, आर्क डीई। दूसरा आर्क हो गया आर्क ईएफ, आर्क ईएफ दूसरा आर्क हो गया। एंड तीसरा आर्क हो गया आर्क डीजीएफ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने आर्क डीजीएफ को आर्क डीजी और जीएफ कंसिडर किया है, तो 4 आर्क हो सकते हैं ना? तो बिल्कुल हो सकते हैं, बट आर्क डीजीएफ को एक ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज आर्क डीजीएफ का वैल्यू दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जिन्होंने 4 बोला वो भी सही है, बट एक्चुअल आंसर क्या है? 3। या 3 या 4 के अलावा अगर कोई आंसर दे रहे, जैसे किसी ने 7 दिया है, किसी ने 11 दिया है, आई नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, मैंने आपको ना कितने आर्क्स बन सकते ये क्वेश्चन नहीं पूछा था बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड। अब जिन्होंने 11, 7 बोले हैं, दे माइट बी राइट, बिकॉज आर्क डीईएफ एक आर्क होता है, आर्क डीएफई एक आर्क होता है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखो अलग अलग आर्क्स। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चन पूछा ये जो सर्कल है वो कितने आर्क्स का बना है, मतलब सर्कल को तोड़ोगे तो कितने आर्क्स बनेगा? तो 4 सही हो सकता है, बिकॉज आप आर्क डीजी और आर्क जीएफ 2 कंसिडर करोगे, बट मैंने बोला आर्क डीजी और जीएफ अलग अलग मत कंसिडर करना, बिकॉज उसका वैल्यू दिया है, तो आर्क डीजीएफ ही कंसिडर करना। तो अगर आप आर्क डीजीएफ कंसिडर करोगे तो सर्कल 3 आर्क्स का बना है, 3 से ज्यादा नहीं। ओके, अब इन तीनों आर्क्स का टोटल होगा 360 डिग्री। measure of all the arcs would be 360 degree, because ये arcs total circle बनाते हैं। So now what we can say is measure arc DE plus measure arc EF plus measure arc DGF is equal to 360 degree। इसका रीजन होगा measure of a circle is 360 degree, because सर्कल का मेजर 360 डिग्री होता है, इसलिए तीनों आर्क्स का मेजर 360 डिग्री है। अब आर्क डीई का वैल्यू हमें ढूंढना है, तो आर्क डीई का वैल्यू पता नहीं, मेजर आर्क डी विल रिमेन सेम। मेजर आर्क ईएफ, ना आर्क ईएफ का मेजर है 70 डिग्रीज, तो 70। ओके, प्लस मेजर आर्क डीजीएफ। नाउ डीजीएफ अगर आप ध्यान से देखो तो आर्क डीजीएफ का वैल्यू 200 दिया है, तो प्लस 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। ये 70 डिग्री 200 डिग्री कहाँ से मिला? गिवन से मिला, एंड फ्रॉम 1। ओके, बिकॉज आर्क ईएफ का वैल्यू 1 से मिला, इक्वेशन 1, बराबर। अब ऐड करो 70 प्लस 200 कितना होता है? 270। सो मेजर आर्क डीई इज इक्वल टू 360 माइनस 270, क्योंकि ये 270 प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया, तो माइनस 270। अब 360 माइनस 270 करेंगे तो मेजर आर्क डी का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर मेजर आर्क डी, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। वी आर मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने कवर कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? आर्क डीईएफ। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, आर्क डीईएफ कितने आर्क्स का बना है? आर्क डीईएफ कितने आर्क्स का बना है? वेरी गुड, सुपर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आर्क डीईएफ जो है वो 2 आर्क्स का बना है,
So we can say measure arc DEF is equal to measure arc DE plus measure arc EF. बराबर, measure arc DEF is equal to measure arc DE plus measure arc EF. इसका रीजन होगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. ना आपको पता ना आर्क एडिशन प्रॉपर्टी मतलब क्या? दो छोटे आर्क्स को ऐड करके जब बड़ा आर्क बनता है, दो छोटे आर्क्स को ऐड करके जब बड़ा आर्क बनता है तो बोलते हैं आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. ओके, सो देयरफॉर मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू, देखो आर्क डी का वैल्यू कितना मिला है 90 बराबर, प्लस आर्क EF, REF का वैल्यू कितना मिला है 70. तो ये 90 और 70 कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. अब ऐड करो, 90 प्लस 70 कितना होता है 160. सो मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू 160 डिग्री एंड दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन का आंसर. ओके, सो आंसर 1 और 2 दोनों हमको मिल गया. दिस सम विल कम फॉर either 2 marks or for 3 marks. Actually 3 marks का क्वेश्चन है, सिंपल 3 marks के लिए, बट कभी कभी हो जाता है कि 2 marks के लिए भी आ सकता है बिकॉज ओनली 2 questions are asked. ओके, चलो कॉपी डाउन दिस सम फास्ट. ओके, yes, Devang, we can do that as well. Perfect. Now students listen, Devang is saying कि अगर हमको arc DEF find करना है तो can we subtract arc DGF from 360 डिग्री में से आर्क DGF सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर्क DEF का वैल्यू मिल जाएगा. दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, वेरी गुड. गणेश, फर्स्ट स्टेप जो है ना, ये देखो, ये आर्क EF माइनर आर्क है एंड माइनर आर्क का मेजर हमेशा करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है. सो ये आर्क EF जो है वो एंगल ECF को इक्वल है. Arc EF is equal to angle ECF. Reason, definition of measure of minor arc. Okay. Yeah, voice is little low. Okay, thoda. थोड़ा just because of overtime, because थोड़ा ज़्यादा traveling हुआ, काम हुआ. Okay, थोड़ा. That's it. I can stretch myself to a big voice, but yes, I am in Mumbai now. तो थोड़ा घर का साफ सफाई ये सब काम है ना. ओके, चलो कॉपी डाउन. Yes, yes, wait. Sneha, please switch off your video. Sneha from Chembur. No, video won't be request. Sneha from Chembur, please switch off your video because आपने जो भी पिक्चर रखा है उसको भी मत रखना. देखो स्नेहा, आप मजाक बन जाओगे, सब लोग बोल रहे हैं मोस्टली. ओके, या नेटवर्क इशू भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. हर वीडियो इज फ्रीज्ड, आई नो. यस, let it be students, ignore. Okay, let us focus. No, पृथ्वी, ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं आया कि सिलेबस रिड्यूस होने वाला है. और okay, this sum, a very simple sum. Okay, very important but very simple. Okay,
Okay, now pay attention. Okay, now in this figure, students, what is given to us? Triangle QRS is an equilateral triangle. This is the first information given to us. Now, students, whenever we say it is an equilateral triangle, what do we understand from this? We understand that if it is an equilateral triangle, all the sides are equal. अगर equilateral triangle है तो all the sides are equal and each angle is 60 degree. Okay. Here we are dealing with sides because अभी हमने सीखा है ना, chords congruent है तो arcs congruent बोल सकते हैं. So since triangle QRS is an equilateral triangle, all the sides of triangle can be say equal. So therefore chord QR congruent to chord RS congruent to chord QS. What would be the reason? The reason would be sides of an equilateral triangle. Sides of an equilateral triangle. We are marking this as equation number 1. Okay. Now, chord क्यों बोला है? Because side of a triangle is actually a chord of a circle. Equilateral triangle का जो side है, वो circle के लिए chord है. तो chord QR congruent to chord RS congruent to chord QS. We are marking this as equation number 1 and we have written the reason as sides of an equilateral triangle. Now, listen carefully, students. As we all know, we have studied a concept कि अगर chords congruent है तो उसके corresponding arcs congruent है, तो corresponding minor arcs का बात कर सकते हैं. तो मुझे बताओ, chord QR के लिए minor arc is arc QR, chord RS के लिए minor arc is arc RS and chord QS के लिए minor arc is arc QS. So therefore chord QR congruent to chord RS congruent to chord QS. इसके वजह से हम बोल रहे हैं कि therefore arc QR congruent to arc RS congruent to arc QS. इसका रीजन क्या होगा? क्या congruent था? Chords congruent. इसलिए क्या congruent हुआ? Arcs. So corresponding arcs of congruent chords. So ये first part हो गया. हमने prove कर दिया first question कि तीनों arcs congruent है. Because chords congruent है तो arcs are congruent. Okay? ध्यान से सुनना. Students, मुझे बताना सर्कल का मेजर कितना होता है? सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री. We all know. एंड अभी मुझे बताना यहाँ पर इस फिगर में सर्कल कितने आर्क्स का बना है? इस सर्कल में कितने टुकड़े हो सकते हैं? आर्क्स. ओके, वेरी गुड, सुपर स्टूडेंट, सुपर. 3. तो इन तीनों आर्क्स को अगर ऐड कर दिया तो उनका मेजर कितना होगा? 360 डिग्री. सो वी कैन स्टार्ट दैट. बट इसके पहले, सिंस ऑल द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, लेट अस कंसीडर द मेजर ऑफ ईच आर्क एज x डिग्रीज. Okay, so let measure arc QR is equal to measure arc RS is equal to measure arc QS is equal to x. QX लिया ताकि solving easy हो जाएगा. That's it. Because तीनों arcs congruent है तो हर एक arc का measure x बोल सकते हैं. Okay. Equation number 2 and we are got this arcs congruent. Okay. From arcs मतलब ये from 1 नहीं सकती reason. Okay. From 1 मतलब arcs congruent क्यों है? Just a moment, give me some time. Okay, I'll do some changes here. Fine. Okay. So now here we can say that. Now tell me students, measure arc QR, arc RS, arc QS का वैल्यू x है. अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि तीनों आर्क्स को अगर ऐड किया तो टोटल कितना होगा? 360 डिग्री. सो लेट अस ऐड ऑल द 3 आर्क्स. सो मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360. अब हर एक आर्क का वैल्यू क्या है? x. सो x, ओके, लास्ट स्टेप था. सो x प्लस x plus x is equal to 360. So therefore 3x is equal to 360. So अभी 3 multiply students, ये 3 multiply उधर गया तो divide हो जाएगा. So therefore x is equal to 360 divided by 3. 360 divided by कितने? 120. 360 को अगर 3 से divide करो तो आंसर कितना होता है? 120. So x का वैल्यू कितना मिला? 120. Okay, we'll mark this as equation.
हमारे काम का चीज है। अब मुझे बताना स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, आर्क क्यू आर एस। नाउ देखना आर्क आर एस का वैल्यू, ओके, सबका मेजर आर क्यू एस और मेजर आर क्यू आर, ये तीनों आर्क्स जो है ये अलग अलग आर्क्स का वैल्यू हमने x बोला था, और x का वैल्यू कितना मिला 120 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में बोला था ना सबको आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, बराबर, x कंसीडर किया था। अभी तीनों आर्क्स का मेजर 120। अभी हमें कौन सा आर्क ढूंढना है, आर्क क्यू आर एस। सो नाउ मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू, अभी देखना आर्क क्यू आर एस कितने आर्क्स का बना है, आर्क क्यू आर एस दो आर्क्स का बना है, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। रीजन होगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, ओके। चलो मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू, अच्छा हर एक आर्क का वैल्यू कितना है 120 प्लस 120, सो मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री एंड वी हैव प्रूव्ड इट, हमें प्रूव करना था, ओके। सो ये हमने प्रूव कर दिया, गॉट इट, क्लियर। यस, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से भी कर सकते हैं डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि आप एंगल 60 डिग्री कंसीडर करके भी कर सकते हो, बट फिलहाल आई डिडंट यूज दैट कंसेप्ट, ये सिंपल कंसेप्ट है इसलिए ये ले लिया है, ओके। चलो आई वांट यू ऑल टू कॉपी डाउन नाउ, कॉपी डाउन दिस सम फास्ट। चलो डू दिस, कॉपी डाउन फास्ट। देखो यश, इट मे हैपन बट इट इज नॉट ट्रू राइट नाउ, देयर इज नथिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज सच अबाउट रिड्यूस्ड पोर्शन, मतलब और फर्दर रिड्यूस होगा ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो लेट अस नॉट डिस्कस दैट, जब होगा तब डिस्कशन करेंगे ना, ओके। Ganesh, don't worry, I'll give you a list of all the theorems which we have to study for the board exam, okay. Okay, finish writing the first slide. Okay, हो गया फर्स्ट स्लाइड सबका कॉपी, सो दैट आई कैन प्रोसीड। बिकॉज जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तब भी बोलते सर वापस फर्स्ट स्लाइड दिखाना। ओके, अच्छा somebody was asking for the last part। देखो आर्क QRS जो है, आर्क QRS दो आर्क्स का बना है, आर्क QR and arc RS। So we have written that measure arc QRS is equal to measure arc QR plus measure arc RS, and the reason is arc addition property। फिर आर्क QR का वैल्यू 120, आर्क RS का वैल्यू 120 सब्स्टिट्यूट किया, सो 120 plus 120 is 240, ओके।
It is nothing but a formal written order by dash and dash. Formal written order by dash and dash. Where it is nothing but a formal written order by. So in that, okay, finished. Now let us start with the next sum. Yeah. Yes, Calista. Okay, that's right. But that is the concept which I haven't taught to you all. I will teach that concept in the next lecture. Don't worry, okay? Now, students, a very simple sum for you all for 2 marks. Very simple. Now, here, what does the question say? In the adjoining figure, chord AB congruent to chord CD. Just a moment. Okay. So what do we know? We know that chord AB congruent to chord CD. Reason is given. Now students, chord AB and chord CD congruent है, दो chords congruent है, तो we know that अगर chords congruent है, तो उनका corresponding minor arc and corresponding major arc congruent होता है. तो let us stick to minor arcs only. तो अगर chord AB consider करते हैं, तो chord AB का minor arc would be arc ACB. एंड कॉर्ड CD अगर कंसिडर करते हैं तो कॉर्ड CD का माइनर आर्क वुड बी आर्क CBD. तो सिंस द टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से आर्क ACB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CBD. रीजन आर्क्स कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए? बिकॉज कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट थे. तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. समझा? क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, आर्क ACB जो है, आर्क ACB वो कितने आर्क्स का बना है? आर्क ACB दो आर्क्स का बना है, आर्क AC प्लस आर्क CB. Okay, so we can write down that. Okay, यहाँ पर हमने क्या किया है? सबसे पहले सिर्फ आर्क को स्प्लिट करना, इसलिए मेजर के फॉर्म में लिखा. सो मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क CBD. स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, व्हेन वी राइट मेजर तो कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखते. सो मेजर लिखा है तो क्या लिखा है? इक्वल. बिकॉज arcs are congruent, their measures are equal. So measure arc ACB is equal to measure arc CBD. So now as I've said to you all, measure arc ACB can be split and written as AC plus CB. So measure arc AC plus measure arc CB is equal to, वैसे ही arc CBD को कैसे लिख सकते हो? measure arc CB plus measure arc BD. रीजन होगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. बिकॉज हमने क्या किया है? बड़े आर्क को दो छोटे आर्क्स में स्प्लिट करके लिखा है. आर्क ACB को स्प्लिट करके लिखा आर्क AC प्लस आर्क CB, एंड आर्क CBD को लिखा आर्क CB प्लस आर्क BD. तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. अब अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में सेम आर्क है. सो ये दोनों सेम आर्क कैंसल हो सकते हैं. सो आर्क CB लेफ्ट हैंड साइड का, आर्क CB राइट हैंड साइड का सेम आर्क कैंसल हो गया. सो बचा क्या? मेजर आर्क AC इज इक्वल टू मेजर आर्क BD. Right? Now students tell me, if the measures are equal, can we say arcs are congruent? जैसे देखो arcs congruent था इसलिए measure equal लिखा. अब measure equal है तो arcs congruent लिख सकते हैं. So we can say therefore measure arc AC equal to measure arc BD था कि नहीं? तो अभी लिख सकते हैं therefore arc AC congruent to arc BD. और यही हमें प्रूव करना था. ओके, सो ये सम आएगा 2 मार्क्स के लिए. बहुत सिंपल सम है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, चलो कॉपी डाउन दिस सम. चिन्मय, आई हैड मेड इट वेरी क्लियर. मैं सबको तो सेम एड्रेस करता हूँ. देयर इज नथिंग अबाउट रिड्यूस्ड पोर्शन एज सच. कोई न्यूज नहीं है तो डू नॉट गेट एंटेंगल्ड इन ऑल सच थिंग. ओके यश, व्हाई आर यू वरीड अबाउट दैट? यू जस्ट फोकस ऑन योर, वो मिनिमाइज कर दो ना वीडियो का पार्ट.
finish writing fast. Okay, yes. हाँ, इसका रीजन कुछ नहीं, मतलब इधर रीजन था, बाकी कुछ नहीं है. ओके, okay students, this was the last sum. Okay, if you finish writing, you can leave the class, no problem. Okay, then I don't know यार कभी क्लासेस स्टार्ट होंगे. We are ready with the classes. हम लोग तो रेगुलरली क्लासेस जाते भी हैं अभी, but then we can't say anything. Yes Yatnesh, we are starting Navratri from tomorrow, but then social distancing के साथ. Yes or no? No, yes, you cannot write any short form for corresponding agreement. कोई short form नहीं है इधर. Okay, short form हम तभी यूज करते हैं when it is mentioned in the text book. हर्ष, बहुत काम होता है ब्रांचेस में जाके, पीपीटीज ये सब कुछ बनाना होता है, पेपर्स रेडी करना होता है, बहुत काम है ना. Yes, hopefully after Diwali everything gets normal. Really yaar, we all are waiting for that. Don't worry students, I'll talk to that girl as well. Okay, because उनके यहाँ पर कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ होगा, that's why our video gets frozen. Thank you Mauli, thank you very much. Okay, no, I'm okay Shreya, not a problem as such, just थोड़ा सा tired feeling, that's it, that's why. Now I can show that all your wishes make me well. Okay, थोड़ा आवाज बढ़ा के चालू कर सकता हूँ. लास्ट का है तो लास्ट एनर्जी थोड़ा आपके लिए. Now how is my voice all of you all? Good, feeling all okay, active as always, right? Yes, मजा आया कि नहीं? Even I felt happy because many of you all were telling me, so you look so tired, थोड़ा आपका एनर्जी डाउन लगता है. Okay, so now थोड़ा सा real Jaising sir is back. Okay, definitely with all your wishes and because your blessings. आप छोटे हो बट आप हमेशा टीचर का अच्छा चाहते हो ना, कुछ नहीं होगा हमको. ओके, यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल, बाय बाय. एग्जाम्स पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है. देखो, जिस चीज का क्लैरिटी नहीं है एंड जिस चीज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो चीज के बारे में हमें क्यों सोचना है? आर वी इन अ पोजीशन टू चेंज द डेट्स और एनीथिंग? नो ना. सो जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं, उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए. ओके, जो चीज हमारे कंट्रोल में है उस पर सोचते ना. हमारे कंट्रोल में ये है कि पोर्शन सिखाते हैं और सीखा हुआ पोर्शन सीखते हैं प्रॉपरली. पंचायत क्यों करने का अपने को? ओके, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर ऑफ यू ऑल, लव यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू ऑल.